जाहिर की बात है फ्यूचर का हमें एक्यूरेट तो पता नहीं होता ना कि हमें इन फ्यूचर कितना प्रॉफिट होना है या कितना लॉस होना है। हम क्या करते हैं, सिर्फ उसको एस्टिमेट करके मिनिमाइज करते हैं अगर लॉस होता है तो, और अगर प्रॉफिट होता है तो कोशिश करते हैं कि मैक्सिमाइज जितना हम प्रॉफिट हासिल कर सकें उतना हमारे पास आए। So what's the mutual fund? Mutual funds are a simply mean a combination or pooling of the funds of a large group of investors. The buy and sell decision for a resulting pool are then made by a fund manager who is compensated for the services provided. Like a commercial banks and life insurance companies, mutual funds are form of the financial intermediaries. Investment company and their type. Investment company, a business that is specialized in a pooling fund from individual investors and investing them. अब ये इसकी type हैं. These are the type of investment companies. Open-end funds and closed-end funds. An investment company, they stand ready to buy and sell shares at any time. Sorry. Closed-end funds, an investment company which with a fixed number of shares that are bought and sold only the open stock market. These are the difference between the open-end and closed-end funds. Investment companies and fund types. ये डेमोग्राफ इसमें देखें, पिक्चर में चार्ट में देखें, यहाँ पर क्लियरली बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट कंपनी उसके दो टाइप्स हैं, ओपन एंड फंड्स एंड क्लोज एंड फंड्स। और ओपन एंड फंड्स के भी दो टाइप्स हैं, उसमें क्या आ जाता है, मनी मार्केट फंड्स एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। मनी मार्केट फंड्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट मनी मार्केट फंड जो होता है वो शॉर्ट टर्म फंड्स में आता है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में मार्केट्स में आता है। Long-term funds, there are also three type of the long-term funds. The number one is stock fund, the second one is bond fund, and third one is blended fund. And we also said that blended fund, the other name of blended fund is hybrid funds. Investment company funds and types still continue the type of assets net value, the value of assets held by the mutual funds divided by the number of share abbreviated NAV. ठीक है, वैल्यू ऑफ एसेट्स हेल्ड बाय द म्यूचुअल फंड, जो वैल्यू ऑफ एसेट्स है उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स से तो हमें NAV मिल जाएगी। NAV स्टैंड फॉर नेट एसेट वैल्यू। Now the share in an open-end funds are worth their NAV because the funds stand ready to redeem their shares at any time. In contrast, the share of closed-end funds may or may not be equal to their NAV. ठीक है, closed-end funds में बोल रहा है कि उसमें मतलब डाउट होता है, वो NAV की इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। What the web? For the mutual fund fact and figures, visit this website. यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर ये ICI इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट फंड्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ज्यादा आप चाहे तो सारी घूम सकते हैं, अदरवाइज ये जो यहाँ पर अबाउट ICI है, इसके जो फंक्शंस हैं, इसके जो ऑप्शंस है, आप इनको पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इसके बारे में नॉलेज मिलेगी कि इन्वेस्टमेंट फंड, म्यूचुअल फंड, उनका एक्चुअली वर्क क्या होता है, वो कैसे चलते हैं, कैसे काम करते हैं। क्लियर मैम? ये तो एक इंडियन वेबसाइट है ना ICI, जहाँ पर चलती है? जी जी बिल्कुल इंडियन ही वेबसाइट है। नहीं सॉरी, ये ICI न्यूयॉर्क की जो है ना वो है वेबसाइट है। ठीक है बेटा, ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये मैंने आपको इसीलिए यहाँ पर लिंक दिया है ताकि आप जाएं। जब तक आप प्रैक्टिकली इस चीज को देखेंगे नहीं काम कैसे हो रहा है तो आपको मे बी सिर्फ बोलने से समझ में नहीं आए। तो जब आप खुद जाएंगे, उसका मिशन, उसका विजन, उसके बारे में पढ़ेंगे, वो कैसे इन्वेस्टमेंट करती है, खुद पढ़ेंगे तो शायद आपको ज्यादा समझ में आए। म्यूचुअल फंड्स ऑपरेशन।
Organization and creation a mutual fund is a simply a corporation. It is owned by the shareholder who elect a board of directors. Most mutual funds are created by the investment advisory firms such as Fidelity Investment. Fidelity Investment का मतलब है कि faithfulness, investment में जो faithfulness होती है उसे ये बोल रहे हैं. और brokerage firm with the investment advisory operations such as Merrill Lynch. ये जो Merrill Lynch है, it's an American bank. ठीक है, ये जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं ये सारे बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शंस होती है. फिर यहाँ पर ये जो एग्जांपल दिया गया है मिडिल ईस्ट का, ये बैंक है अमेरिका का. These firms wish to manage the funds to earn fees. ये फर्म क्या करते हैं, ये मैनेज करते हैं कि फंड्स से फीस कैसे अर्न की जाए. जाहिर की बात है आप लोग इन्वेस्टर हो, लेकिन जो इंस्टीट्यूट आपको सर्विसेज दे रही होती है वो तो फीस चार्ज करेंगी ना. जहां पर हम उसके म्यूचुअल फंड्स की कंपनीज के बारे में पढ़ रहे हैं, इन्वेस्टर्स के बारे में नहीं पढ़े, कंपनीज के बारे में पढ़े. ऑल आर द मेजर फंड्स फैमिली है वेबसाइट. ट्राई फॉर एग्जाम्पल, ये एक और जो है वेबसाइट है, ठीक है, vanguard.com के नाम से. यहाँ पर अभी आपको इसके बहुत ज्यादा अच्छे एग्जाम्पल्स मिलेंगे कि ये कैसे मैनेज करती हैं फंड्स को. लेट मी शो यू. ठीक है, यहाँ पर वर्ड साइड से यहाँ पर आपके पर्सनल इन्वेस्टर्स, रिटायरमेंट प्लान, पार्टिसिपेशन, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, सारे जो भी टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं आप जो चाहे वहां पर विजिट कर सकते हैं. ये इनकी साइट्स हैं. ठीक है, इन्वेस्टर फर्स्ट फोकस, लो कॉस्ट लॉन्ग टर्म. जाहिर की बात है जहां पर इन्वेस्टर फोकस कर रहा होता है ये उनकी वो चीजें बता रहा है. जी आप खुद पढ़िएगा यहाँ पर, मैं क्योंकि ये इंटरनेट है ओपन, आपको मैम साइट यहाँ दी पर तो गई शो है. नहीं हो रही. क्या शो नहीं हो रही मैम आपने स्लाइड चेंज की है क्या अभी? जी? यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर अब हो रही ऑल है. मेजर फंड्स एंड फैमिलीज है वेबसाइट, यही है मैम इते वर्क द वेब ये शो थे स्लाइड. vanguard.com थे पियो. यस मैम. अबे थे पियो तो सही है ना बाबा, केड़ो मसलो है नहीं. ठीक है मैम. मां समझ में चेंज થઈ ગયા તો न न बेटा काइंडली विच में माइक ओपन न कयो. एट द एंड तव्हांजो जेको बि क्वेश्चन आहे न मां तव्हांजी हेल्प कंदमि. मां हिते ई आहियां, काॾे कोन थी वञा. ठीकु आहे. ठीक है मैम, सॉरी मैम, नेक्स्ट टाइम करूंगा. Taxation of investment companies. And investment companies that hold almost all its assets is investments in stock, bond, and other securities. Use no more than 5% of its assets when acquiring the particular securities and passes through all realized investments income to shareholders. It's treated as a regulated investment company for a tax purpose. And does not need to pay taxes on an investment income. जाहिर की बात है टैक्सेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टैक्स भी एक पर्टिकुलर लिमिटेड अमाउंट पे लगता है. तो हर यहाँ पर भी वही है कि टैक्स ट्रीटेड मतलब टैक्स के साथ ट्रीटेड भी कर रहे हैं और नहीं भी टैक्स हमारे ऊपर रिडीम भी हो रहा है. क्योंकि अगर हमारा अमाउंट उस लिमिट से ज्यादा होगा तो जाहिर की बात है हम लोग टैक्स पे करेंगे. The fund prospectus and annual report. Mutual funds are required by law to supply a prospectus to any investor who wishes to purchase share. Mutual fund must also provide an annual report to their shareholders. Type of expenses and fees. Sale charges are loads. Loads mean sale charges. Front-end loads are charges levied on purchase, while a back end loads are charges live on redemptions. 12B1 fee section rule. ये बेटा section rule है इसका. ठीक है, 12B1 allow the fund to spend up to 1% of fund assets annually to cover distribution and marketing cost. Number 3, the management fees, usually based on fund size, performance, etc. Etc. Type of expenses and fees. Trending cost,
sorry, trading cost. This is the related to funds turnover. Expense reporting. Mutual funds are required to report expenses in a fairly standardized way in the prospectus. Shareholder transaction expenses, load and deferred sale charges. Okay? Fund operating expenses, management and 12B1 fees, legal accounting report cost, the direct fees. Hypothetical example showing in the total expense you would pay over the time per 10,000 investment. ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि फॉर नीचे एग्जांपल इसका दिया गया है म्यूचुअल फंड्स कॉस्ट एंड फीस. इसमें एक्सपेंस फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आ जाते हैं फिडिलिटी, रिटायरमेंट ग्रोथ फंड एंड प्रोस्पेक्टस. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस क्या है, ये सारे इसके एक्सपेंसेस हैं. Expenses, shareholder transaction expenses are charged you pay when मैम you आवाज buy. ही कौन तो अच्छे हाणे अचे पियो? हेलो मैडम अचे पियो आवाज़? शेयर होल्डर ट्रांजेक्शन बेटा विच में इंटरप्रेट तव्हां कयो था त मां जेको आहे सफ़ा ध्यानु हटी थो वञे लेक्चर ॾांहुं. प्लीज़. मैडम असल में सर्विसेज कोन है ॿिनि टिनि ॼणनि वटि इन जे लाइ. ओके तो बेटा अगर कोई इशू आहे न तव्हां काइंडली चैट बॉक्स में मैसेज कयो, मां ॾिसी वठंदमि, मुंहिंजी स्क्रीन ते अची वेंदो. जी हाँ मैडम. ठीक है बेटा. Shareholder transaction expenses are charged you pay when you buy or sell share funds. Example, let's say the hypothetical that the funds annually return in 5% and that is the operating expense are exactly just described for every $10,000 you invested here. How much you would pay in the total expenses if you close your account after the number of years. For example, after 1 year, your expenses is $63. After 3 years, your expenses is $199. After 5 years, your expenses is $346. After 10 years, your expenses is $774. So these examples illustrate the effect of expenses, but are not mean to suggest actual or expected cost to return, all which you may vary. ठीक है, ये जस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यूज दी गई हैं, जरूरी नहीं कि आपके इतने ही एक्सपेंस हो, क्या पता इससे कम भी हो सकते हैं, क्या पता इससे ज्यादा भी हो सकती है. शेयर होल्डर ट्रांजेक्शन आर चार्ज यू पे व्हेन यू बाय और सेल शेयर एंड फंड. ठीक है, ये तभी चार्जेस होंगे, तभी आपको चार्जेस पे करनी होंगी जब आप बाय या सेल कर रहे हो शेयर ऑफ फंड्स या कोई भी फंड या सिक्योरिटीज. मैक्सिमम सेल चार्ज ऑन परचेजेस एंड री इन्वेस्टेड डिविडेंड, उस पे कोई भी चार्जेस नहीं होती. डेफर्ड सेल चार्ज ऑन रिडम्पशन इज नन, डेफर्ड सेल पर भी कोई चार्जेस नहीं लगती. एक्सचेंज फी वो भी यहाँ पर कोई नहीं है. एनुअल फंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर पेड आउट, द फंड्स एसेट, द फंड्स पे द मैनेजमेंट फी, the very based on the performance. It is also incurred that expenses for service such as maintaining shareholder record and furnishing shareholder statement and funds report. The funds expense, अब ये क्या है, चार्ज एनुअली फंड्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहाँ चार्ज हो रहे हैं, ये वो चीज बता रहा है कि आपके एक्सपेंसेस फॉर सर्विसेज, मेंटेनिंग शेयर होल्डर रिकॉर्डिंग, फर्निशिंग शेयर होल्डर स्टेटमेंट, या फिर आपकी फंड रिपोर्ट बना रहे हैं, तो वहां पर आप क्या कर रहे हैं, एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं. जाहिर की बात है यहाँ पर आपके एक्सपेंसेस आपको मतलब होंगे, आपको देने हैं. सॉरी. The fund expenses are factored into the share price and divided and are not charged directly to shareholder account. ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शेयर प्राइस आर डिविडेंड्स एंड आर नॉट चार्ज डायरेक्टली टू शेयर होल्डर अकाउंट. वो डायरेक्टली शेयर होल्डर अकाउंट से चार्ज नहीं करेंगे. जाहिर की बात है जब वो उनको देंगे तब उनको बोलेंगे. The following are projections based on the historical expenses and are calculated as a percentage of average assets. ठीक है, historical अगर आपके पास expenses है तो वो percentage of average net assets के थ्रू आपके calculate होंगे यहाँ. हाँ, calculate होंगे, उसके बाद ही आप डिटेक्ट करोगे टोटल हमारे expenses हुए कितने. जैसे मैनेजमेंट फीस है, जाहिर की बात है जो आपकी चीजें मैनेज कर रहा है उसकी जो फीस है यहाँ पर बताई गई है 40%. 12B1 ये क्या है, फीस सेक्शन. ये ऊपर इन्होंने कहा था कि 12B1 फीस के
के सेशन के मुताबिक कोई भी फीस नहीं है, तो यहाँ पे इन्होंने नॉन लिखा हुआ है। अदर एक्सपेंसेस 22%। अब अदर एक्सपेंसेस में ये सारे एक्सपेंसेस आ सकते हैं, ये जो स्टेटमेंट फंड रिपोर्ट्स हैं, एक्सपेंसेस क्या कहा गया, मेंटेनेंस आपका है, आपके शेयर होल्डर रिकॉर्ड हो गया, फर्निशिंग शेयर होल्डर स्टेटमेंट है, फंड रिपोर्ट्स हैं, ये सारी चीजें आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएंगी। तो टोटल इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंस के टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हुए? 62%। ठीक है, यहाँ पे आ गया है प्रोस्पेक्टस आर इंक्रीजली अवेलेबल ऑनलाइन टू सी सम एग्जांपल विजिट्स। ठीक है, प्रोस्पेक्टस हम क्यों देते हैं? प्रोस्पेक्टस होता ही इसीलिए है कि जो मतलब इन्वेस्टर्स के लिए होता है, ताकि इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी के बारे में सारी चीजें जान सकें। ठीक है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में हम वही चीजें देती हैं। प्रोस्पेक्टस इट्स अ काइंड ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हों और हम हमारी कंपनी में या हमारे शेयर्स में इन्वेस्ट करें। To see a funds that are really disclose information try। यहाँ पर ये देखिए पर्टिकुलर कंपनीज हैं जो वो काम कर रही होती है, मतलब प्रोस्पेक्टस का ये वेबसाइट्स आपकी उस पर्टिकुलर जगह पे जाके इंफॉर्मेशन लेने में हेल्प करेंगी, और ये लिंक्स में आपको LMS पे भी प्रोवाइड करूंगी, ताकि आप वहां से भी, अगर आपका स्लाइड्स में आपके ओपन नहीं हो रहे, तो आप डायरेक्ट वहां से जाके ओपन करें और हेल्प ले सकें। ठीक है, to see the fund really discloses information try। यहाँ पर आप IPS फंड्स में जाके वहां पर देख सकते हैं, चेक आउट द प्लान लैंग्वेजेस डिस्क्लोजर्स। ठीक है, इसका क्या रिस्क है, किस तरीके से, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। आप लोगों ने पहले भी ये चीजें पढ़ी हुई हैं, लेकिन अभी आप फिर इसको देखेंगे तो रिकॉल हो जाएंगी और याद आ जाएंगी। Why pay loads and fees? You may want a fund want a fund run by the particular manager, and all such funds are loaded funds। loaded funds के बारे में पता है आपको क्या होते हैं ये? लोडेड इज अ सेल चार्ज कमीशन। ठीक है, आपकी जो सेल की चार्जेस होती हैं या सेल पे जो कमीशन लेते हैं उसे कहते हैं लोड, सॉरी नॉट अ लोडेड। You may want a fund run by a particular manager, and all such a funds are loads fund। You want a specialized type of fund, loads and fees for a such funds tend to be a higher, is there a little competition among them। जाहिर बात है, कमीशन बेस्ड जो बंदा आपके लिए आपके फंड्स को सेल कर रहा है, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आपके शेयर सेल कर रहा है, तो कमीशन ब्रोकर कमीशन तो लेगा ना, विदाउट कमीशन आपका काम क्यों करेगा? शॉर्ट टर्म फंड्स, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। मनी मार्केट आता ही शॉर्ट टर्म मार्केट में है। ठीक है, a mutual fund specializing in a money market instrument, short term funds are collectively known as money market mutual funds। Thank you। MMMF is always maintaining a $1 net assets value to make them resemble bank accounts। डिपेंडिंग ऑन, अच्छा MMMF मनी मार्केट म्यूचुअल फंड का शॉर्ट फॉर्म है, एब्रिविएटेड है इसका। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सिक्योरिटीज परचेज, MMMF कैन बी आइदर टैक्सेबल और आइदर टैक्स एक्सेम्प्ट। जाहिर की बात है, लिमिट होगी, जहां पर वो उस लिमिट से कम होंगे तो वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है, जहां पर वो उस लिमिट से ज्यादा होंगे तो हम टैक्स पे करेंगे उस पर। अगर इस स्लाइड से रिलेटेड टैक्सेबल और टैक्स एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप इन द एंड पूछ सकते हैं। शॉर्ट टर्म फंड्स स्टिल कंटिन्यू। मोस्ट बैंक ऑफर व्हाट आर कॉल्ड मनी मार्केट डिपॉजिट अकाउंट, MMDA। ठीक है, मनी मार्केट डिपॉजिट अकाउंट आर विच आर much likely MMFF। ठीक है, वो उसी तरीके से होता है, तकरीबन एक ही जैसे होते हैं। The distinction is that the bank money market account is a bank deposit and offer FDIC protection। अब FDIC stand for फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ये भी US बैंक में ही काम कर रहा होता है,
जहाँ पर अकाउंट इज अ बैंक डिपॉजिट, उस बैंक में ये काम कर रहा होता है। वो जैसे डायरेक्ट मार्केटिंग में काम होता है, ये बैंक में होता है, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कंपनी, सॉरी नॉट अ कंपनी, कॉर्पोरेशन। फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ 1000 ऑफ फंड्स इंक्लूडिंग MMS विजिट, ये यहाँ पे आपको वो इंफॉर्मेशन मिलेगी कि MMMF जो है फंड्स हजारों की तादाद में वहाँ पे आपको फंड्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप चाहें तो यहाँ पे विजिट करके यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये फंड्स एक्चुअली काम कैसे कर रहे होते हैं। A fund's objective, long-term funds. Now we are going to start long-term funds. A fund's objective is the major determinant of the fund's type. Historical mutual funds were classified as a stock, bond, or income funds. However, it's become increasing difficult to do so. Stock, bond, or income. बंदा सोच रहा है। Some stock funds trade off a capital appreciation and dividend income, capital appreciation growth and income equity, growth and income income. Some stock funds focus on a companies in a particular size range, small companies and mid cap. Mid cap मतलब वो companies जैसे कि stock exchange में registered होने की भी लिमिट होती है, तो उसमें भी कैटेगरीज होती हैं। जिनका हाई कैपिटल होता है वो अलग कैटेगरी में इंडेक्स में आती हैं, जिनका लो तो नहीं, मतलब जिनका उनके मुकाबले में कम कैपिटल होता है वो अलग कैटेगरी में आती हैं। और जो मिड कैप होता है उनकी लिमिट बनी हुई होती है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल के 2 बिलियन से लेके $10 बिलियन तक उनकी रेंज आती है। जो स्मॉल होती हैं वो उससे कम जाती हैं, और जो हाई होती हैं वो 10 बिलियन से ज्यादा जा रही होती है। मतलब मिड कैपिटल का मतलब ये है कि जो बीच में कंपनी आ रही है, ना उनका ज्यादा हाई कैपिटल है ना बिल्कुल स्मॉल कैपिटल है, यहाँ पे वो आ जाती है। सम फंड्स ग्रुप इन्वेस्ट इंटरनेशनली, ग्लोबल, इंटरनेशनल, रीजन। Some funds group invest internationally, global, international, region, country, emerging markets. ठीक है, यहाँ पर ये इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा है। Sector fund specialize in a specific sector of the economy. Other fund types include index fund, social conscience fund, consigned funds, and tax managed fund. Social consigned funds क्या होते हैं? Social consigned funds जो होते हैं, it hold securities in a company's either the social, moral, religious और environmental beliefs. सर की बात है, आपको सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। अभी कौन आया है? निसार। बेटा अभी यहाँ तक मैं आपको 10 मिनट दे रही हूँ। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हैं तो 1 बाय 1 अपना माइक ओपन करें, अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सारे बच्चे एक साथ नहीं बोलिएगा प्लीज। ना क्वेश्चंस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू शुड आस्क मी। मैम नेटवर्क का बहुत इश्यू होता है, इसका क्या करें? नेटवर्क का इश्यू होता है तो आप अगर डेटा से आ रहे हैं तो आप वाईफाई से आ जाओ। ये कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है बेटा। मिस्टर मुश्ताक मरी, ये आपका क्वेश्चन नहीं है, आप अपने रिलेटेड जो टॉपिक है वो क्वेश्चन करें प्लीज। तो भाई ये भी तो मसला हमारा ही है। यस बेटा। अच्छा मैम, जो कोई लेक्चर है ये रिकॉर्ड भी होता है, ये मथे भी ना? जी बिल्कुल मथे विंदो। तो मैम इनमें उन्हनि खे इहा ख़बर पवंदी के असां नेटवर्क जो वॾो इशू पियो थिए, इन लाइ त कुझु कनि। बेटा इनमें उहे छा था करे सघनि? नेटवर्क जो इशू तव्हांजो पंहिंजो इशू आहे न, तव्हां पंहिंजी वाईफाई तां अची वञो। मैम वाईफाई मैम, तो बिल्कुल जेके कोन है। मैडम तव्हां चयो जी प्रेम। मैडम तव्हां चयो नेट एसेट वैल्यू, मैडम इहो छा आहे? इहो थोरो ॿुधाइजो। जी बेटा हिकिड़ो मिनट।
नेट एसेट्स वैल्यू छा आहिनि तव्हांजे एसेट्स आहिनि जेके हेल्ड बाय द म्यूचुअल फंड हूंदा आहिनि म्यूचुअल फंड जे थ्रू जेके तव्हांजा एसेट थियनि था इहा उहा वैल्यू आहे जंहिंजे थ्रू तव्हां मतिलबु इहे उहे नेट एसेट्स वैल्यू आहिनि जेके तव्हां मुंहिंजो एग्जांपल तव्हांखे कीअं ॾियां उहे ज़रिए म्यूचुअल फंड बि तव्हांजी इक्विटी आहे उहे एसेट जेके उनजे इक्वल थियनि जीअं तव्हांजूं जी बाक़ी मैडम जी सिक्योरिटीज़ आहिनि स्टॉक्स वग़ैरह तव्हांजा आहिनि जी हाँ मैडम ठीकु आहे उहे त उहे छा सां डिवाइड थींदी टू नंबर ऑफ शेयर सां त तव्हांजी नेट एसेट्स वैल्यू तव्हां वटि अची वेंदी